Dear students, teachers, speaker of today's talk, Dr. Shiksha Swarupakar, and my dear colleagues from CRRI. Good morning and very warm welcome to all of you. First of all, let me introduce myself. I am Dr. Neelam J. Gupta, Senior Principal Scientist in Central Road Research Institute, New Delhi. CRRI is one of the lab among the 38 labs under CSIR. CSIR is Council of Scientific and Industrial Research. इसके अंदर 38 labs हैं जो various aspects पर research करती हैं and CRRI among 38 labs है जो obviously road research पे काम करती है, right? So इस अटल टिंकरिंग लैब ATL योजना का उद्देश्य बच्चों के मन में जिज्ञासा, रचनात्मकता और कल्पना को बढ़ावा देना और डिजाइन मानसिकता, कंप्यूटेशनल सोच आदि जैसे कौशल को विकसित करना है। इसका उद्देश्य हमारी लर्निंग प्रोसेस को और इफेक्टिव बनाना है। So today in this lecture series under ATL scheme we have with us Dr. Shiksha Swarupakar, Principal Scientist in CSIR, CRRI, New Delhi. And she is going to deliver the talk on a very interesting topic, reduce, reuse, recycle, the 3 R's. 3 R's in road construction. So after her lecture, we will provide you a link to attempt the quiz based on the lecture only. And you can attempt this or submit it till 8 PM today. इस लेक्चर के बाद हम एक लिंक प्रोवाइड करेंगे जो क्विज का लिंक होगा। इस लिंक को जब आप टाइप करेंगे तो आपको एक ईमेल आईडी उसमें फिल करना होगा। तो आपके ईमेल पर एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा। उस गूगल फॉर्म के थ्रू आप उस क्विज को अटेम्प्ट करेंगे। उसके अंदर कुछ मैंडेटरी फील्ड्स हैं लाइक नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, क्लास एंड स्कूल। वो आपको जरूर फिल करना है, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई होंगे। इसके अंदर टोटल 15 क्वेश्चंस होंगे और 4 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, राइट? सो नाउ विदाउट any further delay, I invite Dr. Shiksha Swarupakar for her talk. Dr. Shiksha. Yeah, thank you, ma'am. And मैं अपना slides share करती हूँ. Yeah. And Dr. Shiksha, एक request पहले ही आया है कि आप इसे bilingual रखेंगे, please. Yes, ma'am. Yeah. Yeah. जी. मेरा slide visible है सबको? Yes, yes. Okay. And this slide you must have got in your. आप लोगों को ये slide already मिला होगा to join the link. So today topic as already Neelam ma'am has said that reduce, reuse and recycle, the 3 R's application in road construction. Okay. 3 R, reduce, reuse and recycle. This ये concept सबसे पहले जापान में originate हुआ था in 2004 and this concept is generally used for the waste management concept, for waste management, because in today's era अभी इतना industrialization बढ़ रहा है and हम लोग का इतना we are growing up developing like anything, तो इसीलिए हम लोग बहुत सारे waste generate कर रहे हैं और natural resources हम खत्म करते जा रहे हैं एंड वेस्ट मटेरियल हम जनरेट करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट उसी को फॉर बेटरमेंट दिस कॉन्सेप्ट हैज जनरेटेड इन जापान इन 2004। सो इसमें क्या, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हमें रिड्यूस करना है वेस्ट जनरेशन और पोल्यूशन जनरेशन और रीयूज करना है, जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसको अगेन रीयूज करना है एंड रिसाइकल करना है। इफ वी आर यूजिंग सम मटेरियल देन वी हैव टू रिसाइकल इट एंड यूज इट इन अ न्यू फॉर्म। So this 3 concept we know, as everybody will must be knowing the 3 R's concept. मैंने बोल चुकी हूँ, रिड्यूस मतलब वी हैव टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट और पोल्यूशन प्रोड्यूस्ड। Reuse, using materials more than once, we have to use the material again and again to
to reduce the use of natural resources, and recycle is using materials to make new product. कोई already used material है उसे recycle करके हम new product बना रहे हैं, that is वो आपका recycle है। जैसे हम 3R बात कर रहे हैं, दिस इज फॉर वेस्ट जनरेशन। ये वेस्ट जनरेशन आपके सारे नेटवर्क सब कुछ भी आप काम कर रहे हैं इन दैट यू आर जनरेटिंग वेस्ट। जैसे हम लोग रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, so technically for if you talk about road, then technically we call it as a pavement that is equivalent to road। So if we are talking about pavement, you must, आपको यही पता होगा, जैसे आप रोड में देख रहे हैं, there are two types of pavement, one is concrete pavement, other one is bituminous pavement, that is the black color जो आप देख रहे होंगे रोड में। आप जब गाड़ी में जा रहे हैं तो रोड देख रहे होंगे, that is of black color। So अगर आप बात करेंगे तो technically we call it as a flexible pavement, the black color road we call it as a flexible pavement, जहाँ पे आपका बिटुमन और एग्रीगेट रहता है, स्टोन रहता है। एंड रिजिड पेमेंट जो सीमेंट वाला रोड है, जिस सीमेंट से हम घर बनाते हैं, आप सबको पता होगा। तो वो जो सीमेंट रोड है, आप जब गाड़ी मतलब रास्ते में देख रहे होंगे दो टाइप ऑफ पेमेंट, तो आप आराम से देख सकते हैं, एक है काला कलर, एक है कंक्रीट वाला पेमेंट। सो सीमेंट पेमेंट को टेक्निकली वी कॉल इट एज ए रिजिड पेमेंट। सो हम आज फ्लेक्सिबल पेमेंट के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे बिटुमेन यूज होता है। बिटुमेन इज ए कोल तार। आपने रोड कंस्ट्रक्शन होते हुए देखा होगा अपने आसपास में कहीं पे, अगर नहीं भी देखा है अभी गूगल में आप इस लेक्चर के बाद जाके आप देख सकते हैं कि कैसे बिटुमिनस पेमेंट कंस्ट्रक्ट होता है। तो उसमें दो मटेरियल होता है जो कि मेनली यूज होता है, दैट इज बिटुमेन और एक स्टोन, डिफरेंट साइज ऑफ स्टोन। आप ये पिक्चर देख सकते हैं, दिस आर द स्टोन्स, यू मस्ट हैव सीन समवेयर इन योर नियर बाई एरिया और समवेयर। तो ये जो स्टोन है और ये बिटुमेन है, बिटुमेन इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, बाई पेट्रोलियम, इट्स ए नेचुरल रिसोर्स। एंड स्टोन भी आपका नेचुरल रिसोर्स है, यू आर गेटिंग इट फ्रॉम क्वेरिंग द हिल्स एंड ऑल, यू आर गेटिंग दिस स्टोन। तो बिटुमेन और स्टोन दोनों ही नेचुरल रिसोर्स है, जो बाई यूजिंग दिस टू प्रोडक्ट आपका रोड बनता है। तो जनरली जो स्टोन एंड बिटुमेन है, स्टोन का परसेंटेज 95% रहता है फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, एंड बिटुमेन का परसेंटेज आपका 5% रहता है। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन, कंबाइनिंग दिस टू वी आर प्रिपेयरिंग ए फ्लेक्सिबल पेमेंट। और ये आप देख सकते हैं, एक जो रोड का आपने बस ऊपर वाला लेयर देख रहे हैं काला कलर का या सीमेंट, सो उसके नीचे बहुत सारे लेयर्स होते हैं जो एग्रीगेट और सॉइल से बनता है। इट्स अ थिक पेमेंट, और डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक, इफ ट्रैफिक इज मोर, कहीं पे बहुत ज्यादा गाड़ी चल रही है और हेवी ट्रैफिक चल रहा है, तो वहां पे आपका पेमेंट का जो थिकनेस है, ये जो आप देख रहे हैं थिकनेस, ये थिकनेस आपका बढ़ जाता है। अगर ट्रैफिक कम है तो आपका पतला, थोड़ा कम थिकनेस वाला पेमेंट बनता है। सेम इज हैपनिंग विद द रिजिड पेमेंट। सो आपका रोड कंस्ट्रक्शन अगर आप बात करेंगे तो उसमें ट्रैफिक कितना गाड़ी चल रहा है उसके ऊपर मेनली डिपेंड करता है आपका पेमेंट थिकनेस। ओके, reduce concept, how we can use reduce concept in road construction। सो जैसे मैंने बताया रोड कंस्ट्रक्शन होता है आपका बिटुमेन, में फ्लेक्सिबल पेमेंट के बारे में बात कर रही हूँ। तो आपका कोल तार है ये, और आपका स्टोन्स है, यहाँ पे देखिए स्टोन है और एक कोल तार है। तो कोल तार जो होता है आपका रूम टेम्परेचर में, वो दैट इज इन सॉलिड स्टेट। So in road construction we have to coat the bitumen over the aggregate, then वो दोनों को compact करके we prepare a road। तो आपका कोल तार जो होता है that is in solid state in room temperature, ambient temperature, जैसे हमारा general temperature है 40 डिग्री 30 डिग्री ambient temperature, उसमें solid state में रहता है। तो solid वाला कोई कोल तार को we can't pour it like this, मतलब आप देखिए ये वाला फोटो देखिए, यहाँ पे पूरा liquid state में है। So we have to heat the bitumen up to 150 to 160 degree centigrade, and also we have to heat the aggregate at 150 to 160 centigrade। देन क्या होता है, बिटुमेन का एक लेयर आपके स्टोन के ऊपर बैठता है, देन ये दोनों लेयर आपस में बॉन्ड क्रिएट करके आपका स्ट्रेंथ देता है फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। ओके,
तो आपको जैसे हीट करना पड़ता है बोथ एट 160 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड द बिटुमेन एंड आल्सो एग्रीगेट, then you are getting lots of pollution is emitting like GHG emission, because आप बहुत हीट करते हो. बिटुमेन इज ए पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट, जो पेट्रोल और डीजल होता है उसी का बाई प्रोडक्ट है आपका बिटुमेन. तो आपका बहुत सारा एमिशन जनरेट होता है. एंड ऑल्सो टू हीट अप द बिटुमेन एंड एग्रीगेट वी आर कंज्यूमिंग लॉट्स ऑफ एनर्जी. आपको हीट करना है तो फ्यूल कंजप्शन होता है, क्योंकि आपको जला के हीट करना है, तो वी आर कंज्यूमिंग लॉट्स ऑफ एनर्जी. सो वी कैन रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ एनर्जी एंड ऑल्सो वी कैन रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ एमिशन बाय विदाउट हीटिंग ऑफ द एग्रीगेट एंड बिटुमेन. सो हमें एक टेक्नोलॉजी डेवलप करना है, लो टेक्नोलॉजी, जहाँ पे आपको बिटुमेन को हीट करने की जरूरत नहीं होगा एंड ऑल्सो आपको एग्रीगेट को गर्म करने की जरूरत नहीं है. सो एक थंब है, जैसे बहुत सारे रिसर्च हो रखे हैं. तो अगर आपको एक सिंगल लेन किलोमीटर हाईवे कंस्ट्रक्ट करना है, देन देर इज 1200 टन्स ऑफ CO2 एमिट होता है. जो CO2 एमिट होता है 1200 टन्स ऑफ CO2, which is equivalent roughly equivalent to the emission 210 पैसेंजर कार. अगर 210 पैसेंजर कार पूरे साल में घूमेंगे, देन वो जितना एमिशन जनरेट कर रहे हैं वो आप 1 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्ट करते हुए उतना एमिशन जनरेट कर रहे हो, बिकॉज ऑफ हीटिंग ऑफ द एग्रीगेट एंड बिटुमेन. सो हमें ग्रीन टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करना चाहिए. And we are doing in CRRI and all other global platform, many researchers are doing on research कि हम कैसे वो टेम्परेचर को लो डाउन करें. तो उसमें से जैसे वार्म मिक्स टेक्नोलॉजी हो गया, उसमें आप कुछ एडिटिव बिटुमेन में डाल सकते हैं. तो बिटुमेन में एडिटिव डालेंगे तो वो लिक्विड हो जाएगा, तो दैट इज ए टेक्नोलॉजी. तो आपका टेम्परेचर जो 150 to 170 180 डिग्री में होता है उतना ना करके उससे थोड़ा कम टेम्परेचर में आप हीट करोगे तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा. तो दैट इज नोन एज वार्म मिक्स टेक्नोलॉजी. एंड कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी क्या होता है, उसमें आप बिटुमेन को कन्वर्ट करते हो इमल्शन में, लिक्विड स्टेट में ले लेते हो एट रूम टेम्परेचर विदाउट हीटिंग, एंड देन आप अगर लिक्विड में आ गया तो वो आराम से एग्रीगेट के ऊपर चला जाएगा एंड आपका रोड कंस्ट्रक्ट हो जाएगा. Emulsion. Before going to how that is happening, then first what is emulsion? आपको पता होगा milk is emulsion and also mayonnaise, butter, आप moisturizer जो भी use कर रहे हो, everything is emulsion. And emulsion is a mixture of two immiscible liquid. जो दो मिक्सर आप जैसे पानी हो गया और ऑयल हो गया, आपका मिक्स नहीं होगा. दोनों का अगर मिला के रखोगे तो पानी अलग हो जाएगा, ऑयल अलग, दोनों का फेस सेपरेशन होगा. पानी ऊपर रह जाएगा, ऑयल नीचे, नहीं तो ऑयल ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे चला जाएगा. लेकिन आपको एक मिक्सचर बनाना होगा जिसमें ये दोनों होमोजीनियस मिक्स हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज इमल्शन. तो आपका जो दूध है, मिल्क है, दैट इज ए इमल्शन. यार आप देख नहीं रहे हो कि उसमें व्हाइट कलर का पार्ट अलग है और ब्लैक खाली पानी अलग है, दैट इज नॉट लाइक दैट. वो दोनों अच्छे से मिक्स हुआ है. तो इमल्शन जनरली वाटर टू ऑयल रेशियो होता है जिसमें मिक्स होता है. तो अगर बात करेंगे कि कैसे इमल्शन फॉर्म होता है, तो आप देखिए ये है आपका पानी है और यहाँ पे एक पानी है और आपका कुछ ऑयल का वाटर ड्रॉपलेट है, या ऑयल है और पानी का वाटर ड्रॉपलेट है. तो वो डिस्पोज होता है अच्छे से. तो कैसे होगा, you have to have a disposing agent, we call it as a emulsifier or emulsifying agent. तो आप ये देखिए ये ऑयल ड्रॉपलेट हो गया, ये वाला फोटो में ये ऑयल ड्रॉपलेट हो गया और टोटल पानी है. तो आपको ऐसे एक केमिकल यूज करना होता है, वो हम emulsifying agent, disposing agent बोलते हैं. उस केमिकल में क्या होता है ना, आपका एक एंड होता है हाइड्रोफोबिक होता है. हाइड्रोफोबिक मतलब जो पानी को अट्रैक्ट नहीं करेगा. जैसे केमिकल एंड होता है जो पानी, अगर आप पानी जैसे आप ऑयल डालोगे पानी के ऊपर, ऑयल अलग से दिखता है. और आप जैसे आप देखे होंगे जो लोटस का लीफ है, उसमें अगर पानी डाल देते हो तो पानी अलग से निकल जाता है. तो दैट इज ए हाइड्रोफोबिक, उसमें पानी आपका रहेगा नहीं. एंड एक है जो हाइड्रोफिलिक होता है, जो पानी को अट्रैक्ट करता है, पानी के साथ मिक्स हो जाता है. तो यू हैव टू पुट ए इमल्सिफाइंग एजेंट और एनी केमिकल, उसका जिसका आपका एक एंड वाटरफोबिक होगा और एक एंड हाइड्रोफिलिक होगा. हाइड्रोफिलिक मतलब पानी को अट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोफिलिक इज योर पानी को जो
अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो ऐसे अगर आप एक केमिकल लेते हैं तो क्या होता है कि आपका एक एंड जुड़ गया पानी के साथ और दूसरा एंड जुड़ गया आपका वाटर के सॉरी ऑयल के साथ। ये एंड आपका ऑयल के साथ जुड़ा है और ये एंड आपका वाटर के साथ जुड़ा है। तो क्या हो गया, वाटर और ऑयल आपका साथ में आ गया, प्रिपेयरिंग लाइक आपका वाटर आपके सॉरी ऑयल आपके वाटर के अंदर डिस्पर्स हो गया। सो दिस इज नोन, दिस इज द फॉर्मूला, मतलब with this formulation we can prepare emulsion, any kind of water oil emulsion। जो आपका बटर है वो भी आपका एक इमल्शन है, और आपका मिल्क इज ए इमल्शन। तो मिल्क में क्या होता है, फैट पानी में मिला रहता है एंड वहां पे आपका फैट इज लाइक दैट इज यूज्ड एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट। तो ये सारे इमल्शन फॉर्म है। तो सिमिलरली वी प्रिपेयर ए इमल्शन फॉर बिटुमेन इमल्शन, जहाँ पे बिटुमेन इज काइंड ऑफ ऑयल जो पानी में आपका डिस्पर्स होता है। तो इसमें भी हम लोग वैसे ही एक केमिकल यूज करते हैं। तो वो केमिकल क्या करता है, एक पार्ट आपका बिटुमेन को जुड़ता है और दूसरा पार्ट आपका वाटर को जोड़ता है। तो क्या फॉर्म हो जाता है, बिटुमेन इमल्शन फॉर्म होता है। तो ये बिटुमेन इमल्शन में क्या है, बिटुमेन भी है एंड वाटर भी है, एंड ये लिक्विड फॉर्म में रहता है एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर में आपका लिक्विड, आपको गर्म करने का जरूरत नहीं है टू मेक इट फ्लो। जैसे आपने पहला पिक्चर देखा था कि आपको हीट करना पड़ता है क्योंकि दैट इज इन अ सॉलिड स्टेट, बट हियर यू डोंट नीड टू हीट द बिटुमेन इमल्शन एट रूम टेम्परेचर। दिस इज we call it as cold mix technology, green technology, where we are not heating up the aggregate or bitumen emulsion। एट रूम टेम्परेचर में आपका इस एग्रीगेट के ऊपर ये इमल्शन को जब मिलाएंगे, ऐसे आपका कोट, मतलब ऐसे आपका फॉर्म होगा, कोट होगा, देन आपका रोड कंस्ट्रक्शन, ये ऐसे टाइप रोड आप देख रहे होंगे, फिर ये रोड कंस्ट्रक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है, आप हीट नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका एमिशन भी नहीं हो रहा है, और आपका क्या होता है, आपका एनर्जी भी कंज्यूम नहीं हो रहा है, बिकॉज फॉर हीटिंग यू नीड लॉट्स ऑफ फ्यूल एनर्जी, यू आर नीडिंग लाइक फ्यूल, डीजल और पेट्रोल कुछ चाहिए होता है, वो एनर्जी नहीं यूज हो रहा है। तो दिस कॉन्सेप्ट we take it as a reduced concept of like we are not emitting any energy. So this is the reduced concept can be used in the road construction. जी मैम। the lecture is going on very well, बहुत अच्छा चल रहा है। और मैं स्टूडेंट्स को ये याद दिलाना चाहती हूँ कि आपके क्विज के सारे क्वेश्चंस लेक्चर पे बेस्ड है, तो इसलिए थोड़ा कंसंट्रेट और करेंगे। बाकी इट्स गोइंग ऑन वेरी वेल। या प्लीज कंटिन्यू। एंड अगर आप कुछ स्टडी हमने बहुत सारा किया हुआ है, तो 1 किलोमीटर रोड अगर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो कन्वेंशनल मेथड है जिसमें हम हीट करके करते हैं, दैट वी कॉल इट एज हॉट मिक्स टेक्नोलॉजी, और जो इमल्शन में बेस्ड है दैट वी कॉल इट एज कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी। इफ वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट 1 किलोमीटर ऑफ रोड, देन आप देखेंगे एमिशन कितना, इमल्शन फ्यूल कंजप्शन कितना कम हो रहा है। हॉट मिक्स टेक्नोलॉजी में यू आर कंज्यूमिंग फ्यूल ऑफ 1700 लीटर, नियर अबाउट 1700 लीटर, whereas for cold mix emulsion अगर यूज कर रहे हैं, we are consuming only 90 लीटर। तो हमने कितना कम किया है, फ्यूल कंजप्शन इतना कम हो गया है। तो रिडक्शन ऑफ फ्यूल कंजप्शन बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, बिकॉज हीट करने के लिए हमें रोड की जरूरत नहीं पड़ी। देन कमिंग टू द एमिशन फैक्टर, देन हॉट मिक्स में आपका एमिशन हो रहा है 190 टन्स ऑफ CO2 एमिशन वी आर गेटिंग, 190 200 अप्रोक्स 200, whereas if we are using cold mix emulsion technology then हमारा 37 tons of CO2 we are emitting। So by this technology we are reducing our energy consumption and also emission। Then coming to the reuse concept, because second is the reuse, that is the material whatever we are throwing it out, we don't need to throw it and reuse it for some other purpose। Okay, that is concept is reuse। Then I'm showing some photographs, you just guess and type, if chat box is open you can type it what you are seeing in these photographs। kindly see, look at carefully, आप देखिए इसमें क्या दिख रहा है आपको। और ये थोड़ा सा आपका नजदीक जाने से अभी आपको कुछ अच्छे से दिख रहा होगा, बिकॉज दैट इज फ्रॉम फार अवे वी आर क्लिकिंग, दिस फोटो वाज क्लिक्ड, एंड ये जब थोड़ा पास जा रहे हैं तो यू कैन सी समथिंग। टाइप कर सकते हैं स्टूडेंट्स अगर गेस कर सकते हैं तो। हाँ, इतना टाइम हो गया, अभी टाइप कर लीजिए क्योंकि आपका आंसर अभी नेक्स्ट में आएगा। तो टाइप इट। ओके, सी दिस इज द
प्लास्टिक बॉटल्स, लाइक आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो या पानी पी रहे हो, सब पेट बॉटल्स। तो एज पर न्यूज एंड ऑल 2 मिलियन प्लास्टिक बॉटल्स डम्प्ड एवरी 5 मिनट्स। मतलब 5 मिनट में आप 2 मिलियन हम पूरे, दिस स्टडी इज ऑन यूएस स्टडी है, तो यूएसए का स्टडी है, तो यूएसए में अराउंड 5 मिनट्स में 2 मिलियन प्लास्टिक बॉटल फेंका जा रहा है। तो ये है, अगर आप देखेंगे इट लुक्स लाइक दिस, देन आप में जाएंगे तो दिस इज द वेस्ट। ओके, so this is one thing, you just guess what is the picture, what you are seeing in this picture. You can type it. Yeah. Okay, I'll give 1 minute time to type. Okay. Thoda sa closer, it's a closer view of that picture. This is the carry bags. हम कुछ भी सामान लाते हैं तो पॉलीथीन कैरी बैग्स में लाते हैं। तो 60,000 प्लास्टिक बैग्स डिस्कार्डेड एवरी 5 सेकेंड। कैन यू इमेजिन, 5 सेकेंड में हम 60,000 प्लास्टिक बैग हम डिस्कार्ड कर देते हैं। कितना ह्यूज अमाउंट है। ओके ना, ये एक फोटोग्राफ जो आर्टिस्ट हैं, आपके यूएस के आर्टिस्ट हैं क्रिस जॉर्डन, उन्होंने ये फोटोग्राफ्स लिए हुए हैं टू शो हाउ द मेजर प्रॉब्लम इज प्लास्टिक, बिकॉज हम विदाउट प्लास्टिक वी आर नॉट सस्टेन इन एवरी डे टू डे लाइफ, वी आर यूजिंग प्लास्टिक। तो प्लास्टिक के बिना हम तो सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन दिस फोटोग्राफ शोज हाउ। देन कमिंग टू द दिल्ली इंडिया सिचुएशन, then we are generating about 26,000 tons of plastic per day in India, and उसमें से कितना प्लास्टिक हमारा कलेक्ट करते हैं, we are collecting 15,000 tons of plastic we are collecting। 60% of total plastic जो जनरेट करते हैं उसमें से वेस्ट प्लास्टिक, इट्स नॉट प्लास्टिक, वेस्ट प्लास्टिक जो जनरेट करते हैं उसमें से 60% वी आर कलेक्टिंग। कलेक्ट करके उसका कुछ अच्छे से डंप करते हैं या रीयूज करते हैं, रिसाइकल करते हैं। और लीटर प्लास्टिक जो कलेक्ट नहीं होता है, फेंका रहता है, कितना परसेंटेज है, 10,000 टन्स पर डे। 40% ऑफ प्लास्टिक वी आर नॉट एट ऑल कलेक्टिंग। हम कलेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, वो पड़ा रहता है बाहर। आपने देखे होंगे बहुत सारे जगह में ऐसे ही, जैसे ही आप सी बीच जाएंगे, अभी मैंने फोटोग्राफ्स लगाया नहीं है बट यू मस्ट हैव सीन एवरी अदर डे, आपके पेपर्स में आता रहता है सी बीच में इतना प्लास्टिक है और ओशन में प्लास्टिक इतना जा रहा है। और प्लास्टिक, व्हाट यू थिंक, इट्स ए बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट? It's a non-biodegradable product. आप सबको पता होगा because you all are in class 8 and 9 students 10. So it's a non-biodegradable product जो आपका ऐसे ही पड़ा रहेगा फॉर लाखों साल तक, मतलब बहुत साल तक कि इसका कुछ नहीं होगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब सोचिए अगर हम जितना जनरेट कर रहे हैं उसी रेट में जनरेट करते जाएंगे तो 10 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद क्या होगा? आप एक बार इमेजिन कीजिए व्हाट विल हैपन टू आवर वर्ल्ड, पूरा दुनिया में क्या होगा। तो वी नीड टू यूज दिस प्लास्टिक, रीयूज और रिड्यूस, वी हैव टू डू एनीथिंग विद प्लास्टिक। तो हमारा प्लास्टिक में बहुत कुछ काम चल रहा है कि हाउ टू यूज दिस, रीयूज, रिसाइकल करके बहुत रिसर्च हो रहा है जिसमें रिसाइकल करके पीपल आर जनरेटिंग पेट्रोलियम फ्यूल जनरेट कर रहे हैं। तो बहुत सारे रिसर्च हो रहा है। सिमिलरली इन रोड कंस्ट्रक्शन ऑल्सो वी कैन यूज दिस प्लास्टिक वेस्ट। तो अगर आप सिटीज देखेंगे तो दिल्ली इज द मोस्ट, लाइक दिल्ली में सबसे ज्यादा प्लास्टिक जनरेट होता है पर डे, लाइक 700 नियरली 700 टन्स पर डे हम जनरेट करते हैं इन दिल्ली। इन इंडिया में टॉप 10 सिटी का दिया हुआ है, दिल्ली इज द मोस्ट, द फर्स्ट ज्यादा प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, आप कैसे प्लास्टिक यूज कर सकते हैं? तो प्लास्टिक इज ए पॉलीमर, जो आपका बिटुमेन भी एक पॉलीमर ही है।
तो आप प्लास्टिक को बिटुमेन में भी डाल सकते हैं, मिला सकते हैं। तो व्हेन यू आर मिक्सिंग इट इन बिटुमेन, देन आपका बिटुमेन का प्रॉपर्टीज एनहांस हो जाएगा। देन आप जो बिटुमेन आप जैसे गर्म करके हीट करके आप रोड में यूज कर रहे हैं, वैसे रोड में यूज कर सकते हैं और फिर आपका रोड बन सकता है। देयर इज अनदर मेथड कि आपका प्लास्टिक जैसे आप गर्म में एग्रीगेट है, स्टोन है, उसके ऊपर प्लास्टिक डालेंगे तो क्या होगा, प्लास्टिक का एक कोटिंग हो जाएगा। प्लास्टिक इज ए हाइड्रोफोबिक, लाइक इट्स वोंट टेक वाटर इनटू इट। तो प्लास्टिक में अगर पानी डालेंगे, वो पानी अलग से रहता है ना, वो लेता नहीं है, पानी अलग है। तो आपका जब एग्रीगेट में आप प्लास्टिक कोट कर रहे हैं, देन आप बिटुमेन कोट कर रहे हैं, तो आपके सड़क मतलब जो सड़क रोड बन रहे हैं उसमें पानी अंदर जाएगा नहीं। एंड यू मस्ट बी नोइंग कि आपके रेनी सीजन में आपके रोड गड्ढे बढ़ जाते हैं, रोड्स में गड्ढे बढ़ते हैं, सब होता है, क्योंकि पानी इज द एनिमी ऑफ द रोड। बिकॉज आप अगर पानी ज्यादा रहेगा तो आपका बिटुमेन अलग हो जाएगा एग्रीगेट से। तो इसीलिए आप प्लास्टिक को एग्रीगेट में कोट करके देन आप बिटुमेन डाल सकते हैं और फिर आप रोड बना सकते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी में क्या होगा, आपका बिटुमेन का वाटर लाइक रेजिस्टेंस टू द वाटर डैमेज, आपका डैमेज नहीं होगा, पानी से कम डैमेज होगा, बिकॉज दैट इज ए प्लास्टिक दैट वोंट टेक वाटर इनटू द रोड। So that is one advantage, and also बहुत सारे research करके we have seen, because it's a polymer having a high melting point and polymeric behavior show करता है। तो आपका performance like road का life अच्छा होता है, performance अच्छा होता है compared to conventional plastic, and अच्छा होता है। These are some advantages when you are using plastic in waste plastic in road construction. जो भी वेस्ट प्लास्टिक आ रहा है वो एज इट इज यू कांट यूज, बिकॉज रोड इज ए वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन। वहां पे कुछ भी आप डंप नहीं कर सकते हैं कि लाए हाँ कुछ भी प्लास्टिक आया आप डाल दिए। सम ऑफ द प्लास्टिक मतलब कुछ तरीके के प्लास्टिक है दैट कैन गो इनटू द रोड कंस्ट्रक्शन। ओके, ऑल टाइप ऑफ प्लास्टिक कांट गो इनटू द रोड कंस्ट्रक्शन। अगर वो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है और एज इट इज ऐसे पड़ा रहेगा तो आपका रोड डैमेज हो जाएगा। तो यू हैव टू गो थ्रू टोटल टेक्निकल कंटेंट, आपको देखना पड़ेगा हाउ कैन प्लास्टिक गो इनटू द रोड। एंड प्लास्टिक जैसे आपका सारे, हम तो हमारे इंडिया में इफ यू सी वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट कलेक्शन सिस्टम इज नॉट करेक्ट। सो हम सब कुछ साथ में ही डंप करते हैं और फिर हमें सेग्रीगेट करना पड़ता है। तो जैसे आपका बहुत सारे वेस्ट मटेरियल है, टीन कैन हो गया, आपका प्लास्टिक बॉटल्स हो गए, प्लास्टिक बैग्स हो गए, आपका जूते हो गए, ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा चला जाता है, देन उसको लोग सेग्रीगेट करते हैं। तो दीज आर सम स्टेप अवेलेबल टू गेट plastic which can be used for the road construction. So first you have to segregate the plastic which is useful for the road. देन आपको प्लास्टिक में जितना डस्ट और मिट्टी आते हैं उसको क्लीन करना पड़ेगा। अदरवाइज द प्लास्टिक में जो भी डस्ट और मिट्टी आ रहा है ना, दैट विल गो इनटू द रोड कंस्ट्रक्शन एंड आपका डस्ट और मिट्टी नहीं जा सकता है। उसका वेल ग्रेडेड स्टोन अवेलेबल होता है, तो उसमें डस्ट जाएगा तो आपका रोड का परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा, अच्छा काम नहीं करेगा। तो इसीलिए यू हैव टू क्लीन द डस्ट। तो थ्रू मैकेनिकल प्रोसीजर लाइक आपके वाइब्रेटर में डाल के आप अच्छे से हिलाओ शेक करो तो आपका डस्ट निकल जाएगा। अदरवाइज यू कैन हैव टू क्लीन इट थ्रू वाटर इंजेक्शन, वाटर डाल के आप क्लीन कर सकते हो। तो क्लीन करा प्लास्टिक, देन आपको स्प्रेड करना होगा, क्योंकि अगर बड़ा पार्टिकल हो गया प्लास्टिक का वो भी बिटुमेन में अच्छे से मिक्स नहीं होगा और ना ही एग्रीगेट में अच्छे से कोट होगा। तो प्लास्टिक का साइज डिफाइन करना होता है, छोटा साइज लाइक 2.36 mm से बिलो साइज और 300 माइक्रोन से बड़ा साइज प्लास्टिक यू हैव टू टेक। तो यू हैव टू लाइक श्रेडर में आपको प्लास्टिक को छोटा करना चाहिए, सो दैट वो आपका प्लास्टिक होगा जो यू कैन यूज इन रोड कंस्ट्रक्शन। ओके, और प्लास्टिक टाइप बात करेंगे तो आपका हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, लो डेंसिटी पॉलीइथिन जैसे कैरी बैग्स हो गया और आपका पाउच, मिल्क पाउच हो गया, ये सारे आपके चले जाएंगे रोड कंस्ट्रक्शन में। और वाटर बॉटल भी चला जाएगा, पॉलीप्रोपिलीन भी चला जाएगा और पॉलीस्टेरीन भी चला जाएगा फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। बट पीवीसी लाइक पाइप्स हो गए, पीवीसी हो गए, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सारे ये नहीं जाएगा आपके रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। जो मिनरल वाटर बॉटल हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ये सब में पीवीसी होता है, वो यू कांट यूज इट फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन, क्योंकि पीवीसी का मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। और पीवीसी को आप जब गर्म करते हैं, बिकॉज रोड कंस्ट्रक्शन के लिए यू हैव टू हीट इट, तो गर्म करते हैं तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स लाइक रिलीज होता है,
डाइऑक्सिन रिलीज होता है विच इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ, सो पीवीसी नहीं जाएगा। तो दीज आर सम प्लास्टिक लाइक हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन, लो डेंसिटी पॉलीथिलीन, दिस कैन गो इनटू द रोड कंस्ट्रक्शन। डॉक्टर शिक्षा, कॉमन क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये हो सकता है कि जो प्लास्टिक रोड्स हम यूज करते हैं वो फिर एनवायरनमेंट के लिए हैजार्डस तो नहीं होता ना, उसके अंदर कुछ एमिशंस तो नहीं होते? नहीं, उसमें एमिशन नहीं होता है, बिकॉज आप जैसे लो डेंसिटी वही प्लास्टिक, सारे टाइप ऑफ प्लास्टिक आप डाल देंगे तो दैट विल बी हैजार्डस। जैसे मैंने बोला पीवीसी, अगर आप हाँ कर रहे हैं तो आपका डाइऑक्सिन निकलता है, तो दैट विल बी हैजार्डस टू एनवायरमेंट एंड आल्सो लेबर। सो वी हैव टू सिलेक्ट लाइक इट्स यू नीड टू हैव प्रॉपर प्लास्टिक वेस्ट। जो इसका पूरा टेक्नोलॉजी बना हुआ है कि आपको उसी प्लास्टिक को लेके फिर करना पड़ेगा। और लीचिंग हमने देखा हुआ है, देयर इज नो लीचिंग इन प्लास्टिक। तो आपका जब रोड बन जाएगा तो उसमें से कोई लीचे नहीं निकलेगा कि आपका ग्राउंड वाटर को पोल्यूशन कर ले या कुछ नहीं, दैट इज नॉट देयर। बट यू नीड टू सी विच काइंड ऑफ प्लास्टिक विल गो इनटू द रोड। तो जैसे आप रोड बनाएंगे तो आपका रफली 1 टन ऑफ प्लास्टिक यूज होता है फॉर 1 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। मतलब आपका 1 टन ऑफ प्लास्टिक यूज हो जाएगा इफ यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट 1 किलोमीटर ऑफ रोड। सो एंड ऑल्सो वी हैव थ्रू दिस टेक्नोलॉजी, अगर ये चलाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा। बिकॉज आपका जो प्रॉपर प्लास्टिक निकालना है, सेग्रीगेट करना है, उसके लिए यू कैन रैक पिकर का प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट होगा, सो दैट दे विल कलेक्ट द प्रॉपर प्लास्टिक एंड उसे सेग्रीगेट करके वो दैट विल बी ए वन इंडस्ट्री कैन सेटअप, जो कि प्रॉपर प्लास्टिक कलेक्ट करके उसको प्रोसेस करके विल गिव टू रोड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो प्रॉपर एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम हो जाएगा विद एडिशन ऑफ दिस प्लास्टिक रोड। तो दिस इज ए यस मैम। एक और चीज जो है जो इंडिया में अभी तक इंट्रोड्यूस हम ठीक से नहीं कर पाए, जो है कि घर से हम सेग्रीगेट करें बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो आगे चल के उसको हम रियली में यूज कर पाएंगे एज ए ना गीला कूड़ा, जैसे बायोगैस या फिर प्लास्टिक जिस तरह से ना। तो वो कॉन्सेप्ट भी हमें अब जल्दी इंडिया में इंट्रोड्यूस करना होगा। आगे स्लाइड में मैंने वही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लास्टिक वेस्ट कैन गो टू प्लास्टिक रोड। यू कैन सी द वेस्ट कलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज ए फोटोग्राफ ऑफ डंपिंग यार्ड, जहाँ पे सारे वेस्ट पड़ा हुआ है। उसमें आप सारे टाइप ऑफ वेस्ट देख सकते हैं, जिसमें फूड वेस्ट है, खाना गिरा हुआ है, प्लास्टिक गिरा हुआ है, पेपर गिरा हुआ है, जूते गिरे हुए हैं, कार्डबोर्ड गिरा हुआ है, सब कुछ है। तो दिस शुड नॉट, मतलब ये हमारा इंडिया का कलेक्शन सिस्टम है कि हम कुछ भी गार्बेज निकाले और जाके कहीं पे भी फेंका है। कहीं पे आजकल तो कहीं पे नहीं फेंकते हैं, वो एक बनता है उसी में जाके रख के आते हैं, या गाड़ी आती है हम रख लेते हैं। बट वी हैव टू इम्प्रूव दिस कलेक्शन सिस्टम सो दैट वो इजी होगा। जैसे आप प्रॉपर वेस्ट कलेक्शन सिस्टम बाहर जाएंगे तो आपका ऐसा है, पेपर के लिए अलग है, मेटल के लिए अलग है, प्लास्टिक के लिए अलग है, ई वेस्ट जैसे आपका मोबाइल, और ई वेस्ट इज ऑल्सो ए वेरी न्यूमरस, लाइक अभी वो बहुत ज्यादा हो रहा है बिकॉज वी ऑल आर हैविंग मोबाइल्स एंड एवरीथिंग, एंड मोबाइल्स का लाइफ भी बहुत कम होता है तो हम फेंक देते हैं। तो ई वेस्ट, ग्लास, ऑर्गेनिक वेस्ट, तो बाहर अगर कंट्री में जाएंगे तो आपका ऐसे टाइप कलेक्शन सिस्टम होता है, सबका अलग अलग। बट इन इंडिया वी आर थ्रोइंग एवरीथिंग टुगेदर। अभी आपका कलेक्शन अभी नियरली अभी 5-6 साल पहले ये हुआ था, वेट वेस्ट अलग करो, ड्राई वेस्ट अलग करो, गीला कचरा, सूखा कचरा। अभी गाड़ी भी आती है स्वच्छ भारत का, घूमती है दिल्ली में, आपने देखा होगा गाड़ी, तो उसमें भी होता है कि आपको अलग अलग डालना है। बट हम घर में इतना सही से करते नहीं है। मैं खुद देखती हूँ, लोग सेम में लेके सेम डाल देते हैं। एंड आई हैव बीन टू भोपाल, जहाँ पे हमारा एक प्रोजेक्ट था कि हम देखते थे how they are how the people are managing waste management कैसे हो रहा है। तो वहां पे हमने बहुत सारे लाइक रैग पिकर और बहुत वो गाड़ी वाले जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के गाड़ी लेके जाते हैं, उनसे बात किया हुआ था। तो they were saying कि मैक्सिमम 80% लोग घर में गीला और सूखा कचरा ही अलग नहीं करते। उसके बाद तो बात करेंगे कि पेपर, कार्डबोर्ड, जूता, ये सब अलग करें। पहले तो गीला, लाइक गीला इज योर सम फूड ऑर्गेनिक वेस्ट, और सूखा इज एवरीथिंग जो भी आपका है, पेपर वगैरह, जो दैट विल कम अंडर सूखा कचरा, वो ड्राई वेस्ट। तो हम उसी को अलग नहीं कर रहे हैं इंडिया में, और बहुत कम 80% लोग ही नहीं कर रहे हैं। तो वी हैव टू गियर अप। एंड आप लोग स्टूडेंट हो तो आप जैसे यू आर द नेक्स्ट फ्यूचर ऑफ इंडिया और नेक्स्ट फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, तो आपको अभी आपके घर में ये कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए
कि नहीं, वी नीड टू डू दिस, हमें 2 बिन रखना होगा डस्टबिन, एक में ऑर्गेनिक वेस्ट रखेंगे, एक में ड्राई वेस्ट रखेंगे, दैट यू हैव टू टेक। आज के प्रेजेंटेशन के बाद मैं सोच रही हूँ कि आप सारे जितने 50-60 जो भी बच्चे यहाँ पे हैं, तो अपने अपने घर में दैट दे शुड स्टार्ट डूइंग दिस। अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके घर में नहीं हो रहा है ये चीज या कुछ, तो आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। Yeah, more than 150 students have joined, Dr. ओके Shiksha. ओके, देन आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि आप जैसे अगर हो रहा है, क्योंकि अभी बहुत लोग कर रहे हैं, वी ऑल आर लाइक एजुकेटेड एंड हम स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत लोग हम करते नहीं है, तो इसीलिए यू कैन स्टार्ट एट योर होम इटसेल्फ। तो घर ही सबसे पहला स्कूल होता है या कुछ भी अच्छा चीज करने के लिए, तो आप घर से ये स्टार्ट कर सकते हैं। This is the concept reuse. This is one of the example. Every concept I am showing one example. How can we incorporate this 3R into the road construction? Because road construction आने से ये सारे अलग हो जाते हैं. तो how we can use this concept? So then coming to the recycling concept in road construction. Then recycling is concept is like whatever material you are having, जो waste product है उसको recycle करके कुछ नया product बनाना, that is the motto of recycling. Then you can see these are the Indian road scenario. I don't have to tell much. मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप हर दिन रोड में ट्रैवल करते हैं, आप देखते होंगे कि रोड का मतलब इट्स कंडीशन इज वेरी, मतलब कभी खराब हो जाते हैं, मानसून के बाद कुछ होता है, तो वी हैव टू रिपेयर द रोड, हमें रोड रिपेयर करना, समथिंग टेक्निकल है, लेकिन आई मतलब मैं चाहूँ आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन वेरी रॉ मैनर, होपफुली आप लोगों को समझ में आ जाए। तो ये जैसे आपका रोड है, मैंने पहले ही दिखाया था, रोड इज नॉट अबाउट दिस ब्लैक टॉप, देयर आर मेनी लेयर्स आर देयर, सॉइल, एग्रीगेट, ऐसे होके आपका बहुत बड़ा सा लेयर बनता है, रोड का थिक लेयर होता है। तो जैसे आप ऊपर में देखते हैं, ओनली यू आर एबल टू सी दिस वन, ऊपर से देखते हैं, लेकिन नीचे से वो बनते आ रहा है, वो दैट इज ए इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट लग के वो बनता है। तो आपका जैसे ही रोड में पोर्टल्स देख रहे हो, क्रैक देख रहे हो, रोड में बहुत डिस्ट्रेस देखते हो, तो आप ऊपर वाला बस देखते हो कि यहाँ पे ये खराब हो रहा है एंड यू नीड टू रिपेयर दिस वन। नो, आपको पूरा नीचे से ही रिपेयर करना पड़ता है। कभी कभी रोड इतना खराब हो जाता है कि आपको नीचे से ही रिपेयर करना पड़ता है। तो आपका क्या ऑप्शन है? यू हैव टू रिमूव ऑल द मटेरियल एंड थ्रो इट आउट, ये सारा मटेरियल रिमूव करो, फेंक दो एंड नया रोड फिर से बना दो, नया सारा मटेरियल यूज करके आप नया रोड बना दो। दिस इज वन ऑप्शन जनरली, मतलब जो ऑप्शन हम यूज करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। तो इसमें क्या होता है, आपका लॉट्स ऑफ मटेरियल कंजप्शन, बिकॉज नया रोड पूरा बनाना मतलब नया बिटुमेन और नया एग्रीगेट, फ्रेश बिटुमेन, फ्रेश एग्रीगेट आप यूज करते हो। देन आपको क्या होता है, डिस्पोजेबल इशू भी होता है, लाइक ओल्ड पेवमेंट, जो इतना बड़ा बहुत सारे पेवमेंट मटेरियल है, क्योंकि 1 किलोमीटर में आप देख सकते हो कि कितना टन्स ऑफ मटेरियल यूज, लाइक 100 टन्स ऑफ मटेरियल आप 1 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। तो डिस्पोजेबल इशू हो जाता है, आप कहाँ फेंकोगे वो पुराना वेस्ट जो जनरेट हो रहा है, ठीक है। देन एनर्जी कंज्यूम, बिकॉज आप पूरे ही नीचे से बना रहे हो, तो एनर्जी भी कंज्यूम हो रहा है और टाइम भी ज्यादा चाहिए कंस्ट्रक्ट करने के लिए। दीज आर सम इश्यूज विद दिस टेक्नोलॉजी, लाइक फॉर रिपेयरिंग ऑफ पेवमेंट। तो उसके बाद और एक है, लोग यूज करते हैं, दैट इज ए शॉर्टकट टू दैट मेथड। उसमें क्या हो जाता है, ये हो गया आपका डैमेज, तो आप एक मोटा सा लेयर ऊपर डाल दो, मोटा सा लेयर डाल दोगे तो वो कुछ साल के लिए रोड चल जाएगा। मतलब अगर डैमेज हुआ है, अगर आपको 2-3 साल चलाना है, तो आप एक लेयर डाल दो, वो 2-3 साल और चल जाएगा। फिर ऐसे करते करते आप 10 साल में या 15 साल में 1-2 लेयर डाल ही देते हो, तो ये क्या होता है, ये थिकनेस आपका बढ़ते जा रहा है। तो क्या होता है, पेवमेंट थिकनेस बढ़ जा रहा है। तो आपने बहुत सारे देखा होगा, रास्ता आपका ऊपर है और घर नीचे रहता है, मतलब घर नीचे हो जाता है, रास्ता ऊपर, क्योंकि आप रास्ते में रोड मतलब लेयर डालते जा रहे हो, तो रास्ता ऊपर होता जा रहा है और घर नीचे होता जा रहा है। एंड ऑल्सो वी आर कंज्यूमिंग मटेरियल ऑल्सो, कि आप नया मटेरियल डाल रहे हो, तो दिस आर सम इशू। एंड इट्स जस्ट ए कितना हम यूज कर रहे हैं, वो एक आइडिया देने के लिए मैंने ये दिया हुआ है कि इन इंडिया अबाउट 1500 टन्स ऑफ एग्रीगेट आर रिक्वायर्ड पर किलोमीटर ऑफ हाईवे। मतलब एक हाईवे बनाने के लिए 1 किलोमीटर आपको 15,000 टन ऑफ एग्रीगेट चाहिए। एंड अगर NHDP में 60 किलोमीटर ऑफ इम्प्रूवमेंट अभी दिया हुआ है कि 60 किलोमीटर रोड बनाने के लिए वी आर रिक्वायरिंग अबाउट 20 लाख टन ऑफ मटेरियल। ओके, इट इज अबाउट द मटेरियल कंजप्शन। देन कमिंग टू द एनर्जी,
तो आपका जो एग्रीगेट लाते हैं तो एग्रीगेट को हीट करना पड़ता है, तो वी आर नीडिंग अबाउट 90,000 लीटर्स ऑफ फ्यूल टू ड्राई और हीट द एग्रीगेट। इतना सारा फ्यूल भी कंज्यूम हो रहा है 90,000 लीटर फॉर 1 किलोमीटर के लिए। सिमिलरली अगर एग्रीगेट क्वेरी, ऐसे नहीं है कि दिल्ली में आप रोड बना रहे हो तो दिल्ली में ही आपको एग्रीगेट क्वेरी मिलेगा। एग्रीगेट तो आपका पहाड़ क्वेरी जो होता है वो पहाड़ से वो क्वेरी करके लाते हैं, तो आपको दिल्ली में नहीं मिलेगा। यू हैव टू टेक इट फ्रॉम समवेयर एल्स। तो अगर 200 किलोमीटर आप किलोमीटर दूरी से आप एग्रीगेट ले रहे हो मतलब थ्रू ट्रक एंड ऑल, देन यू आर कंज्यूमिंग अबाउट 180 लाख लीटर ऑफ डीजल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि आपको एग्रीगेट लाना है। बिटुमेन में भी विद इन दिल्ली यू कांट गेट द बिटुमेन, यू हैव टू टेक इट फ्रॉम समवेयर लाइक IOCL रिफाइनरी से लाना होगा। तो इंडिया में अगर आप कहीं पे कर रहे हो तो दिस मच एनर्जी यू आर नीडिंग। एंड ऑल्सो आपको पता है कि एमिशन तो हम कर ही रहे हैं बाय हीटिंग ऑफ द एग्रीगेट एंड ऑल। तो प्रॉब्लम है कि वी हैव टू reduce the material consumption because aggregate you also know that is a natural resource। मतलब ये धीरे धीरे डिप्लीट हो जाएगा। नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, वो डिप्लीट होते होते जाएगा, खत्म होते जाएगा और कुछ साल के बाद वो मिलेगा ही नहीं। सिमिलरली आपका बिटुमेन इज ऑल्सो ए नेचुरल रिसोर्स, सो वी हैव टू कंज्यूम लाइक कंजर्व दोज रिसोर्सेज। तो उसके लिए क्या होता है आपका, आप देखेंगे ये एक टेक्नोलॉजी, रिसाइकल टेक्नोलॉजी इज देयर इन रोड कंस्ट्रक्शन। बाहर भी यूज हो रहा है और इंडिया में भी इट इज पॉपुलैरिटी इज गेनिंग इट्स पॉपुलैरिटी। सो इसमें रिसाइकल में क्या होता है, आपको पहले ही दिखाया था कि दिस इज द रोड डैमेज हो गया, आपका ये रोड है, इसमें आपका बिटुमेन है, एग्रीगेट है, सब कुछ है। तो यू कैन व्हाट यू नीड टू डू, आपको ये पूरा पोर्शन को जितना डैमेज हुआ है उसे मिलिंग कर दो, निकाल दो। वो ओल्ड पेवमेंट है, ओल्ड रोड है, पुराना रोड है, उसे निकालो। Then you can add some new material, new aggregate, new chemical। that research we are working on। CRRI में भी काम हो रहा है, वर्ल्ड ग्लोबली भी काम हो रहा है। तो उसमें हम कैसे नया मटेरियल डाल के वी कैन कंस्ट्रक्ट ए न्यू रोड। तो उसमें क्या हो गया, आपका ओल्ड पेवमेंट को नया पेवमेंट में हम यूज कर रहे हैं। that is known as the recycling technology। okay, so you can see this is the milling machine available worldwide। आपका है तो आपका ये जो रोड है, पुराने रोड है, आपको मिल करके ये सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, आपको खोद के वो मटेरियल दे रहा है। ओके, दिस इज, अगर पास से देखेंगे दिस इज द ओल्ड पेमेंट मटेरियल। तो इसमें क्या है, ये ओल्ड पेमेंट मटेरियल है, इसमें क्या है, आपका एग्रीगेट भी है, बिटुमेन भी है, यू हैव एवरीथिंग इन दिस ओल्ड पेमेंट। ओके, and this material we call it as RAP। जो ओल्ड पेवमेंट में बोल रही हूँ, ओल्ड रोड मटेरियल है, उसे हम RAP बोलते हैं, रिक्लेम्ड एस्फाल्ट पेवमेंट। ओके, दिस इज द टेक्निकल टर्म, वी कॉल इट एज ए RAP, रिक्लेम्ड एस्फाल्ट पेवमेंट। तो क्या होता है, आप अगर RAP यूज कर रहे हो तो आपका जो आपका वर्जिन एग्रीगेट और बिटुमेन जो चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी उस पेवमेंट में कुछ एग्रीगेट और कुछ बिटुमेन है, तो आपका वो रिक्वायरमेंट भी कम हो जाता है। सो यू आर कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्स। एंड ऑल्सो आप क्या करते हो कि ट्रांसपोर्टेशन, जैसे आप कहीं रोड बना रहे हो, उसी जगह में आप निकाल रहे हो मटेरियल, देन उसी जगह में बना रहे हो। तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन मैंने दिखाया था कि 200 किलोमीटर दूरी से लाने के लिए वी आर नीडिंग 180 लाख ऑफ टन्स ऑफ लीटर। तो वो लीटर आपका जो कंजप्शन, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका बच जाएगा। कैसे लाओगे आप, ट्रांसपोर्ट थ्रू ट्रक करोगे या ट्रेन करोगे तो आपका बहुत ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो बिकॉज उसी जगह से निकाल रहे हो, उसी में बना रहे हो, तो जो आपको एग्रीगेट, नया एग्रीगेट और नया बिटुमेन चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन से आपका जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो फ्यूल कंजप्शन है वो सारा बचेगा। दीज आर सम एडवांटेज ऑफ रिसाइकलिंग, रिक्लेम एस्फाल्ट पेवमेंट यूज करने का। तो दिस इज द मेथोडोलॉजी। यू कैन सी यू आर प्रिपेयरिंग ए न्यू रोड, then after certain time, after 10 years or 5 years the road damage हो जाता है, तो you can mill the material, then take it to a plant जहाँ पे आप नया material बना सकते हो। उसमें कुछ फ्रेश एग्रीगेट, फ्रेश बिटुमेन एंड एडिटिव जो रिक्वायर्ड है, टेक्निकली वी डू इन लैबोरेटरी, हम लैबोरेटरी में करके टेस्ट करके हम बना के उसका फ्रेश, तो कुछ 80% यूज कर सकते हैं, कहीं पे 30% यूज कर सकते हैं। तो कुछ पोर्शन हम वही पुराने रोड का यूज करके कुछ नया डाल के वी कैन कंस्ट्रक्ट ए न्यू पेवमेंट। तो दिस इज द टेक्नोलॉजी, दैट इज रिसाइकल्ड asphalt, रिसाइकल्ड पेवमेंट टेक्नोलॉजी वी कॉल इट।
वो रिसाइकलिंग होता है। तो आप एक प्रैक्टिकल केस स्टडी जो CRRI ने हमने काम किया था, उसमें हमने चेक किया था कि वी आर सेविंग अबाउट पर किलोमीटर वी आर सेविंग अबाउट 833 टन ऑफ एग्रीगेट, वो स्टोन जो होता है, 31 टन ऑफ बिटुमेन वी आर सेविंग, एंड ऑल्सो एमिशन 40 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट एमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 1 किलोमीटर रोड। और हमने जिसमें काम किया था दैट इज ऑफ 68 और 70 किलोमीटर रोड में काम किया था। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि for 70 kilometer how much everything we have saved using this technology. Okay. So finally we are into concluding section. Like हमने तीनों पढ़ लिए कि reduce, reuse and recycle कैसे हो सकता है, and I have given one example. So there are many more things can go into the road for road construction, for improvement of road, which will show to come under reduce, reuse and recycle. Like reuse में मैंने plastic waste बताया है, वैसे industrial slag waste भी बहुत होता है, जैसे आपका ferrochrome slag generate होता है, और steel slag हो गया, 1:1 में आपका waste generate होता है। If you are using steel slag, steel plant में अगर steel आपका 1 ton निकल रहा है, तो आपका waste भी 1 ton निकल रहा है, और more than that we are generating waste. सिमिलरली आपका कोई भी अलॉय इंडस्ट्री हो गया, कॉपर इंडस्ट्री हो गया, फेरोक्रोम हो गया, उसमें सब में आपका 1:2 नियर अबाउट 1:1 में आपका वेस्ट जनरेट हो रहा है। सो those slag is also having a property similar to the stone, जो स्टोन हम यूज कर रहे हैं, तो उसका प्रॉपर हमें टेस्ट करके we can use that also as a replacement to the aggregate. That is also a one method. Similarly recycling payment, तो आपका वेस्ट इंजन ऑयल हो गया और रबर हो गया, वेस्ट इंजन कुकिंग ऑयल हो गया, उसमें भी कुछ पैरामीटर है which is similar to the bitumen. बिटुमेन का जो कंपोजिशन है वो वेस्ट, बिकॉज बिटुमेन इज ए बायो लाइक प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, तो वही इंजन ऑयल, वेजिटेबल ऑयल भी आपका उसी बेस से है। जो वेस्ट हो गया उसको भी हम रिसाइकल, लाइक वी हैव टू डू सम केमिकल अल्टरनेट हमें करके वी कैन यूज एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ बिटुमेन इन बिटुमेन, लाइक जो बिटुमेन हम यूज कर रहे हैं उसका रिप्लेसमेंट जैसे भी हम यूज कर सकते हैं। तो दीज आर सम एग्जांपल्स आई हैव गिवन। डॉक्टर जैसे कि आपने कहा कि नेचुरल रिसोर्सेज हमारे डिप्लीट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो हम जितना भी वेस्ट मटेरियल जो है उसे हम यूज करने की रोड कंस्ट्रक्शन में कोशिश कर रहे हैं, और CRRI उसके ऊपर बहुत रिसर्च कर रहा है। यहाँ तक कि हम जो कूड़ा है, जो गार्बेज है, उसे भी रोड कंस्ट्रक्शन में यूज करने के लिए रिसर्च कर रहे हैं, और बहुत ही जल्दी हम लोग इस चीज को भी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सॉलिड वेस्ट है गाजीपुर जब जाते हुए आप देखे होंगे बड़ा सा डंप, पहाड़ जैसे, आपको लग रहा होगा कि दैट इज ए पहाड़, आप सबको पता होगा वहां पे बहुत बदबू भी आती है जब आप उसी रोड में जाते हो। तो उसका जो सॉलिड वेस्ट है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, उसको भी हम चाहते हैं कि वी आर वर्किंग ऑन दैट इन CRRI, हाउ दैट कैन बी यूज्ड फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, बिकॉज रोड में आपका बहुत मटेरियल यूज होता है। तो फॉर दैट ऑल्सो वी आर वर्किंग, एंड आई हैव गिवन यू अ टास्क, लाइक घर में जैसे आप देख सकते हो, मतलब ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट करने के लिए। सिमिलरली इफ यू हैव फ्री टाइम यू कैन गो थ्रू इंटरनेट, बिकॉज आजकल तो इंटरनेट सबसे एक्सेसिबल है, देन आप नया कुछ देखिए कि कैसे वी कैन यूज, व्हाट मटेरियल वी कैन यूज अंडर फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। 3R के अंडर आएगा, रिड्यूस, रिसाइकल एंड आपका रीयूज के अंडर आएगा। सो यू जस्ट गो थ्रू एंड सी। And coming to the now in today's generation, there are 4R concept is also there, 5R concept is also there. 4R में क्या add हो गया आपका, recover add हो गया कि recover, you have to recover something from the waste product. So that is the 4R waste product, or from some industry you have to recover something. तो आप देखेंगे कि there is a concept like I just gave one example that water is also depleting. आपने देखा होगा recently केप टाउन इज ए कंट्री जहाँ पे कितने सालों से बारिश नहीं हुई है। केप टाउन इज ए सिटी, साउथ अफ्रीका का सिटी है, आप पढ़े होंगे बहुत जगह में कि देयर वाटर रिसोर्स आपका कम हो गया। सिमिलरली बहुत सारे जगह में पानी नहीं हो रहा है, तो वी हैव टू डू द लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम करते हैं, जनरली रूफ टॉप में किया जाता है। तो पेवमेंट में भी ये कॉन्सेप्ट, रोड कंस्ट्रक्शन में भी हम ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो आपका जो पानी है डायरेक्ट विल गो टू द रिजर्वियर बना के वी कैन हैव ए रिजर्वियर ऑफ वाटर
टेबल जो है हम बढ़ा सकते हैं थ्रू दिस पेमेंट, लाइक रिकवर हम कर सकते हैं, वाटर रिकवर कर सकते हैं. दिस पेमेंट वॉट एवर द कॉन्सेप्ट इज दैट वी कॉल एज पोरस पेमेंट. तो इसमें क्या होता है, आपका बहुत सारे पोर्स रहते हैं, थ्रू अगर बारिश हुई तो पानी साइड में ना जाके वो नीचे जाएगा, और नीचे पेमेंट के नीचे आप एक वाटर टैंक बना दोगे या वाटर टेबल जो भी है वो बढ़ते जाएगा. तो दैट इज ए कॉन्सेप्ट पीपल आर वर्किंग ऑन एंड वी कैन यूज इन रोड कंस्ट्रक्शन. तो उसमें भी रिसर्च हो रहा है. तो आज के लिए इतना. थैंक यू.